रोलिंग है? Should we start? Oh, it's rolling already. डिजिटल एंड हैंडमेड में बहुत बड़ा डिफरेंस। व्हेन अ प्रोडक्ट इज मेड विद हैंड्स, वो सिर्फ हाथ से बना हुआ ही नहीं होता है, उसमें एक इमोशनल कनेक्ट होता है, बहुत सालों का एक्सपीरियंस होता है, उसकी उस आर्ट के प्रति लगन होती है। दैट हैज एक्चुअली कम आउट। सो दे आर नॉट मेकिंग प्रोडक्ट, दे आर मेकिंग ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस इनटू लाइफ। अ हैंडमेड प्रोडक्ट इज एक्चुअली हार्ट मेड प्रोडक्ट। सो there is a difference between a painting and a poster. There is a difference between a plastic tree and a natural tree. So that's the difference between digitally printed versus handmade. If you could rate one celebrity's sari wardrobe, who would it be? Why do you say this particular industry or sari as a business is an art in itself? Kawaii का मतलब होता है adorable things, beautiful things. And art is beautiful. Don't you think my products are beautiful? Yeah. You're wearing So, one, yeah. Why should art be restricted to only wall? Why not clothes? 1000 में साड़ी दे दो. How easy and difficult it is कि लोग समझ पाते हैं कि what's the value and why it is valuable. मुझे लगता है कि when you wear a sari, it should be free flow. It should not become very kadak. We are selling heritage products. मैं कोई भी products हम बनाते हैं, those products should be passed on. Wooden का एक block होता है, उसे जो भी fabric है उसके ऊपर प्लेस करते हैं। भगवान के पीछे लटकाने वाली हैंगिंग को हम पिछवाई कहते हैं। पिछवाई में लॉर्ड श्रीनाथ जी 8 साल के जो थे उसका रूप बताया है। If it is an original sari, there will be a smell which will always be there. Gucci giving Indian art inspired handbags. Those are the dream kind of collaborations that I want. हमारी pictures के साथ में it is available in digital printed for 700 rupees, 800 rupees. You definitely feel bad कि यार ये तो हमने design की थी. Hi, welcome. Hi Anona. How are Thank you? I'm good. Thank you for having me in the show. And Ahmedabad, Udaipur से Ahmedabad आके, how do you feel? Amazing. Excited? This is your first podcast, right? Yeah, first. Yeah, and this is my first podcast when it comes to sarees. I mean, Okay. मैंने कभी, because that's like my favorite subject और हर इंसान, हर lady का at least India में साड़ी is like a favorite clothing to wear. बट उसमें बहुत सारी चीजें जो मेरे को भी पर्सनल लगता है कि शायद मुझे भी नहीं पता है. फ्रॉम टेक्सचर टू द न्यू पैटर्न्स एंड वीविंग्स एंड कलर्स एंड एवरीथिंग, बहुत सारी चीजें जो मैं पर्सनली भी जानना चाहती हूँ. सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर जॉइनिंग अस. लेट्स हैव अ क्विक रैपिड फायर राउंड रिगार्डिंग अराउंड साड़ीज. एंड आपको जानते हो उसके बाद विल कंटिन्यू विद योर जर्नी एंड एवरीथिंग. सो लेट्स स्टार्ट. या फर्स्ट, सिल्क और ऑर्गेन्जा? सिल्क. योर ऑल टाइम फेवरेट वीव? Skip. Yeah. All favorite, I'm assuming. Yeah. One color you would wear for the rest of your White. life. White. White. कलमकारी और पिछवाई? पिछवाई. हैंडलूम और डिजिटल प्रिंट्स? हैंडलूम. हील्स और जूती विद अ साड़ी? जूतीज. Biggest- Only जूतीज. Biggest question. If you could rate one celebrity's साड़ी wardrobe, who would it be? रेखा जी. Oh yeah. साड़ी in Paris और साड़ी in Santorini? साड़ी इन सैलटोरिनी. I know, yeah. What's more stressful, a delayed shipment or misprinted border? Both. Both? Most underrated weave in India? All. All? Most overused fashion buzzword? Sustainable. The weirdest sari question a customer ever asked? 1000 रुपए में दे दो. I am sure that must be a great dilemma for you, no? Yes. Yeah. So let's start with, अब मैं सारी चीजें जानना चाहती हूँ because सस्टेनेबल से लेके काफी चीजें आपने मुझे क्वेश्चन ऑलरेडी दे दिया. बट लेट्स स्टार्ट फ्रॉम योर जर्नी. आई थिंक 2019 में आपने स्टार्ट किया था. 2020. 2020 में. सो इट्स बीन गुड लॉन्ग 5 years ना. 4-5 years, राइट. तो आपने पहले हाउ डिड यू प्लान? बिकॉज मैं जितना जानती हूँ पर्सनली, आई फील साड़ी इज समथिंग जो एक हर लेडी का कहीं ना कहीं सपना होता है, यू नो, टेक्सटाइल एंड साड़ी टू हैव देयर ओन ब्रांड समहाउ, यू नो, इन दिस इंडस्ट्री एंड बी इन टेक्सटाइल. तो आपने वो शुरुआत कैसे की एंड व्हाट वर यू डूइंग बिफोर दैट? Okay. So actually, I am a business graduate, but I'm always fascinated towards art. तो जब भी मैं कोई आर्ट बेस्ड प्रोडक्ट देखती हूँ तो मुझे बहुत ही ज़्यादा मतलब उसके ऊपर उस पर क्यूरियोसिटी हो जाती है कैसे बना है. बचपन से ही मेरा मतलब आई हैव बीन वेरी पैशनेट अबाउट आर्ट. तो मेरी गर्मी की छुट्टियाँ सब आर्ट क्लासेस में गई है. और जब भी मैं फ्री होती थी तब भी मैं स्केचिंग करती थी. सो यू नो आई हैव ट्रैवल्ड टू अ लॉट ऑफ प्लेसेस across the world because of my husband's job. So we have stayed in China, we have stayed in Dubai, so a lot of places.
So I was doing art because I was not doing anything at that point of time. Yeah. So so I was sure that अगर मैं कभी कुछ करूँगी, Apart so from corporate. apart from my banking job which I had earlier, हाँ. it would be related to art. Wow. So and people except India, everywhere else value Indian art the most. अभी आया है awareness Indian लोगों में भी अपने art को लेकर, but I feel in a place like China also people love art, Indian art especially. Okay. Right, yeah. So lot of people they used to ask me questions, अगर आप वहाँ से मेरे लिए लहरिए का दुपट्टा लेके आना, आप मेरे लिए पिछवाई है ना वाली काऊ वाली पेंटिंग लेके आना. Yeah. So this is the love that they have. I mean, across the world people have that kind of love for Indian art. So we as Indians now we are actually appreciating our art and culture. We have been able to understand now. Now you feel Yes, so I feel that awareness has come now. So But okay, a very basic question मैं आप पूछती हूँ. मैंने जैसे आपसे साड़ी का पूछा and you spoke about art. Like basically you have connected साड़ी and art. Yeah. बहुत लोग ये नहीं समझेंगे. Correct. Why do you say this this particular industry or साड़ी as a business is an art in itself? ठीक, see, why art? Because we are making wearable art. Okay. Right? साड़ी अगर देखो, it's a forever product. Art देखो, is a forever product. So we have combined both. Right? Very So nice. this has been the idea. Behind your brand also. Yes. Okay, tell me about your brand. मतलब अगर कवई, right? The pronunciation. Right. कवई. तो कवई का first of all the name is very pretty. तो नाम का मतलब क्या और आपने जो combination किया, what was your idea behind bringing this brand in front? Okay, like I told you, like I was always fascinated. मुझे art ही करना था. तो during COVID सबके पास बहुत ample time था. Yeah. So I just took a handkerchief और मैंने उस पे एक छोटा सा flower बनाया, फिर दुपट्टे पे flowers बनाए and उसके बाद में लोगों को दिखाया, सबको बहुत अच्छा लगा. So this is how the brand came to life. नाम इसका बाद में रखा गया. कवाई का मतलब होता है adorable things, beautiful things. And art is beautiful. Don't you think my products are beautiful? Yeah. You're wearing So, one, yeah. हाँ. So the products are beautiful. Art is beautiful. So that was the idea that we'll make beautiful products. Very nice. सारी इंडिया में and राजस्थान में we as a community Jain हम लोग साड़ी को we have been like wearing. My mother, she wears sari. My mother-in-law, she also wears sari. It's a tradition. Right. Eventually throughout my life मैंने सबको साड़ी पहनते हुए देखा है और मेरे हमेशा दिमाग में था कि साड़ी तो मतलब सब कहते हैं ना साड़ी बहुत ही सुंदर लगती है. तो बस वही सोचकर मैंने सोचा कि क्यों नहीं हम फ्लावर्स को वगैरह को हम साड़ी पर बनाएं. एंड व्हाई शुड मतलब आर्ट बी रिस्ट्रिक्टेड टू ओनली वॉल? व्हाई नॉट क्लोथ्स? क्योंकि द ओनली रीजन व्हाट आई फील इज कि नॉट एवरीबडी कैन गेट इनटू योर हाउस टू सी आर्ट. और आप but you can take the art with you. Right. Very you can nice. wear it. Second, you may not want to invest in a painting. पर आप अपने wardrobe में तो invest करना चाहोगे ना. तो what was your, अगर मैं आपसे पूछूं, like this is really interesting, आपकी वो पहली साड़ी जो आपने खुद से डिजाइन की थी, can you explain what was it and कैसे डिजाइन की थी, क्या था? Like I told you, white color is my favorite color. हाँ. White and pink flowers. That was my first saree. That was your first saree? Yeah. And the first sale, like पहली साड़ी जो आपने sell करी थी किसी को, that was that only? No. Yeah. That was actually a suit. And then the second one was a saree which was bought by my sister-in-law. And अब की family और यही सब होते हैं first your first Starting buyers. तो वैसे ही रहती Right. है. Yeah. So what's the process? Let's start from the start. क्योंकि अगर एक इंसान जो देख रहा है और जिसे शायद इसमें more interest हो, जो जानना चाहता हो कि कैसे साड़ियाँ बनती हैं, कैसे market में next step लिया जाता है. What was yours? How did you do it? मतलब कुछ भी अगर कुछ भी प्रोडक्ट बनाते हो, so you have to make sure कि उसे ज़्यादा से ज़्यादा लोग खरीदें. Right. So though art is not a very scalable thing, पर आप चाहते हो कि लोग, बिकॉज आपका ऑब्जेक्टिव, मेरा ऑब्जेक्टिव इस ब्रांड के पीछे है कि आई वांट टू स्प्रेड आर्ट. राइट. तो हमने कुछ आर्टिस्ट पहले फिगर आउट किए जो हमारा प्रोडक्ट बना सकते हैं बार बार सेम तरीके से. कैसे फिगर आउट किए? राइट. वी हैव बिकॉज दे वर डूइंग ओनली कैनवस उस समय. तो हमने जाके देखा उनका पेंटिंग कैसा है, कितना इंट्रिकेट है, कितना अच्छा वो करते हैं, किस कॉस्टिंग पे वो काम करते हैं.
उसके बाद में हमने उन सबको सैम्पल्स डिस्ट्रीब्यूट किए. सो सैम्पल्स के बाद में वी फिगर्ड आउट कि these 3 people can work for us. सैंपल्स मतलब आपने कपड़े दिए होंगे और करेक्ट उन पे करेक्ट उनको आर्ट करेक्ट करनी है, जी ठीक जी है, जी जी. ठीक है. तो फिर उन्होंने बना के दी एंड बेस्ड ऑन दैट वी शॉर्ट लिस्टेड फ्यू पीपल हु कैन वर्क फॉर अस एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड. वाओ वाओ. तो आपके कितने डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स, अगर मैं साड़ी का, आप मेरे को एक बार थोड़ा पहले डिफाइन कर पाओगे कि कितने, जैसे आपने बोला कैनवस आपने स्टार्ट किया, तो Correct, व्हाट आर द correct. डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ साड़ीज एंड द आर्ट फॉर्म्स दैट यू हैव करंटली? See, we are doing simple floral. हम्म. Okay, we are doing Madhubani, ठीक which है. is from Bihar. ओके. Then we are doing batik from ठीक है. Bengal. ठीक Then है. we are doing kalamkari inspired sarees, which are like made in different parts of the मैं ये country. सब आपसे डिटेल में पूछूंगी कि जी. एक एक आर्ट फॉर्म क्या होता है, बिकॉज जी. आई थिंक जैसे आपने बोला अवेयरनेस बहुत बढ़ गई है, बट लोगों को पता नहीं है ऑनेस्टली कि ये Right. क्या होता है. मैं भी काफी इसमें बाहर से जब व्हेन आई शॉप एंड एवरीथिंग, आई नो व्हाट्स द डिजाइन, बट व्हाट्स द वीविंग, व्हाट्स द प्रिंट, कहाँ से है, क्यों फेमस है, वो सारी चीजें आई थिंक लॉट ऑफ पीपल स्टिल डोंट नो. Correct. तो मैं उसमें थोड़ा डीप डाइव करूंगी, बट या प्लीज गो ऑन. और क्या क्या है? Yes. So then we have Ajrak, ओके. हाँ. which is from Bhuj. Then we have Bandhani, which is again from Gujarat, ओके. and then we have Pichwai. तो हाउ डिड यू, एज इन आप चूज कैसे करते हो कि कौन सी साड़ी में आपको कौन से आर्ट फॉर्म आपको कनेक्ट करना है, या कौन सा आर्ट फॉर्म आपको ऐड करना है या माइनस करना है? हाउ डू यू चूज दैट? See, it depends upon a lot of factors कि उस आर्ट का मतलब लाइक ओरिजिनेशन क्या है, वो कितने टाइम में बन सकता है, कस्टमर्स को कितनी उसके बारे में नॉलेज है, वो क्या वैल्यू क्रिएट करेगा हमारी सोसाइटी के लिए, और क्या हम उन आर्टिसंस के साथ काम करके आर वी लाइक गिविंग समथिंग बैक, बिकॉज दीज आर द काइंड ऑफ आर्ट फॉर्म्स विच आर नॉट एक्सटिंक्ट. I will not say they're extinct, but we are spreading them, so we are not letting them extinct. So that's the things that we look at. बट while- हाउ इजी एंड डिफिकल्ट इट इज टू, जैसे आपने स्टार्टिंग का आंसर दिया 1000 में साड़ी दे दो, हाउ इजी एंड डिफिकल्ट इट इज कि लोग समझ पाते हैं कि व्हाट्स द वैल्यू एंड व्हाई इट इज वैल्यूएबल? देखिए, 2 टाइप के कस्टमर हैं. एक कस्टमर वो है जिनको आर्ट की वैल्यू पता है, जिनको पता है कि ये जो चीज़ें हैं ये एक्सपेंसिव ही बनेंगी. और दूसरे टाइप के कस्टमर्स हैं जिनको जो देख रहे हैं ये ओवर द पीरियड ऑफ टाइम इसे एक्सपीरियंस करते जा रहे हैं, एंड दे आर थिंकिंग whether they should buy or Buy it not. or not, Yes. हाँ. And eventually when they buy from us and when they receive the product, then they understand the value. Then they understand the value, and then those are actually the kind of customers we are looking at. Yeah. Kyunki then they become your repetitive customers. Because they understand the Because value, then they of start course. understanding, and which has been the objective. कि हम उन customers तक पहुंचे जो अभी हमारी रडार में नहीं है, जिन्हें पता नहीं है about these art forms. They're just seeing. Yeah, of course. And Right. that's, I think वहीं पे जो वो नॉलेज वाला जो आपने Correct, बोला ना correct, पॉइंट, कि लोगों को पता ही नहीं है कि जो आप डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स की बात कर रहे हो वो हाँ, क्या है. Correct. तो उससे पहले अगर मैं आपसे समझती हूँ, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम कि जो साड़ी हम, जैसे आपने अभी इतनी सुंदर साड़ी आपने पहनी है, जी. व्हाट्स द प्रोसेस ऑफ क्रिएटिंग अ साड़ी? मैं आपसे बहुत बेसिक से, आप जो जितना सिंपली समझा पाओ ना, कि from procuring the हाँ. probably the yarn or probably the fabric, how do you choose it, and then choose करने के बाद आप कौन सा कलर उसमें कॉम्बिनेशन डालोगे या क्या डिजाइन्स बनाओगे. सो एक एंड टू एंड जर्नी जो होती है ना साड़ी की, Right. अगर आप कोई एक फॉर्म जो आपका फर्स्ट फेवरेट फॉर्म हो, प्रॉब्ली बटीक और पिचवाई व्हाटएवर, हाँ. लेट्स जस्ट स्टार्ट फ्रॉम दैट. एक साड़ी एक स्टार्ट से एंड तक कैसे कस्टमर तक पहुंचती है, कैसे बनती है वो? दिस इज व्हाई आई एम आस्किंग कि जो आपने बोला ना कि एक आर्ट की वैल्यू तो हम बात करेंगे पर एक जो पूरी एक जर्नी होती है, लोगों को सब पता होना चाहिए, विच नोबडी, आई डोंट थिंक ज्यादा लोगों को भी पता है. Correct. लेट्स स्टार्ट फ्रॉम दैट, एंड उसके बाद धीरे धीरे आई डेफिनेटली वांट टू, एज आई मेंशन, डीप डाइव इनटू एवरी सिंगल आर्ट फॉर्म. तो Yeah. सबसे पहले we work on the design, which is very important. you yourself do it? See, I'm a artist also, so I do, like I told you, मैं खुद भी कुछ खुद भी आप paintings करते वगैरह. हैं, and then you have your artist also. Then अलग-अलग. yes, so ठीक I है. get inputs from them also. I get majority of inputs from them also. So I just give them a basic layout कि मुझे ये पसंद आ रहा है, ये क्या कलर्स में और हो सकता है, ठीक है. और Of the design you are saying. करेक्ट ठीक ये है. और कैसे, किस डिज़ाइन में हम इसे कैसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, ठीक है. डिज़ाइन की इंट्रिकेसी और डिज़ाइन किस हिसाब से बनेगी, उस पर हम फैब्रिक डिसाइड करते हैं. जस्ट लेट मी जस्ट गिव यू एन एग्जांपल. अगर आपको एक डिटेल्ड
हैंड पेंटेड साड़ी चाहिए तो आप यू कैन नॉट गो फॉर प्योर फैब्रिक्स. सी देयर माइट बी पीपल जिनका डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो सकता है इस बात पर मुझे लगता है कि व्हेन यू वेयर अ साड़ी इट शुड बी फ्री फ्लो, ऑफ कोर्स. राइट. इट शुड नॉट बिकम वेरी कड़क, ठीक है. तो अगर आपको इंट्रिकेट डिज़ाइन चाहिए तो उसके ऊपर काफ़ी सारी लेयरिंग होगी और उसके ऊपर काफ़ी सारा शेडिंग होगा, so which ओके. will make the sari little stiff. So in that case we would like to go for a semi pure fabrics ताकि जो थोड़े से मोटे रहे. प्योर और और सेमी प्योर में एक बार क्या होता है, डिफरेंस क्या जी होता है? प्योर फैब्रिक्स होता है जो मतलब लाइक बिल्कुल प्योर सिल्क है ओके. जिसमें कुछ भी पॉलिस्टर या फिर नथिंग इज मिक्स्ड, अच्छा, ठीक है. राइट. ठीक है. सेमी प्योर में देयर इज मिक्सिंग ऑफ थ्रेड्स. ठीक है, प्योर got भी it. होता है उसमें बट देयर इज अ मिक्स. गॉट इट. ठीक है. Correct, ठीक right. है. So, so in both the things we have to first discuss the design कि अगर design intricate है then it has to go on a semi pure fabric क्योंकि साड़ी should be free flow, ठीक है. right. और इंट्रिकेट मतलब बिल्कुल ऐसे जिसमें काफी डिटेल्ड हो. हाँ जिसमें Got it. शेडिंग इन्वॉल्व हो काफी सारी ठीक क्योंकि है. इसमें लेयरिंग लगेगी आपकी. तो साड़ी अगर थोड़ा सा फैब्रिक मोटा होगा तो कलर्स को काफी अच्छे से सोख Got. लेगा, हम्म. राइट. एंड इट विल नॉट हैम्पर उसकी फैब्रिक की स्मूथनेस ऑल्सो. हम्म. So this is what one thing that we take into consideration. ठीक है. फिर डिज़ाइन जब डिस्कस हो गई, जब उसके बाद में डिज़ाइन की इंट्रिकेसी डिस्कस हो गई, फिर हमने फैब्रिक डिसाइड कर लिया. हम्म. देन उसके बाद में उसका प्रोडक्शन होता है. हम्म. वी गो फॉर 10-12 पीसेस. How do you source the fabric and everything? You source it locally or? No. Everything is sourced from different. Like Chanderi, it comes from Madhya Pradesh. ठीक है. Then we source from Bangalore, West Bengal. Tussar comes from Chhattisgarh or West Bengal. Or then some silks are from handloom silks. We buy from Bengal, some from Bangalore. So this is how the ठीक silk है. is ठीक है. bought. But how did you, as in, got connected with everyone from Bengal to Madhya Pradesh? You yourself went. How do you explore that part also? See, we're living in an age where everything is present on digitally. So we have a community of artists, and so with their support and with my little bit of understanding, हमने मिलके and we could figure out. But is it easy? Because इतना जो competition है market में, तो you get the right price from the right person. Is it easy still? यार शुरू में थोड़े से हार्डशिप्स आए बट देन इवेंचुअली थिंग्स फॉल इनटू प्लेस. Enter हो जाता है इंसान. करेक्ट. यू शुड जस्ट हैव द विल पावर कि यार मुझे करना है. तो आप थोड़ा सा यू रिसर्च अबाउट इट. Yeah. So eventually you will get to know a lot of people. You speak to 10 people, you speak to 15 people. Of course. Right. So then you know they will also explain you कि नहीं मैम हमारे फैब्रिक में इतना काउंट है, हमारा फैब्रिक इसलिए बेटर है. तो आप 10 जनों से बात करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि अच्छा ये कह रहा है, तो कहीं ना कहीं आप मिडिल वे फिगर आउट करिए. बट आपसे अगर मैं पूछूं, अगर जैसे आप अभी बता रहे हो कि जब आपने बिकॉज इतना एक्सपीरियंस अब लिया है, इतने अलग अलग लोगों से आप काम करते हो, तो वन थिंग दैट you know will tell to people whosoever is looking to buy fabric or anything from anybody कि ये चीजें तुम जब भी अपना कोई जैसे वेंडर बोलते हैं, जो भी सोर्स फाइनल करते हो, तो क्या चीजें हैं जो कपड़ों में while buying it तुम्हें ध्यान रखनी चाहिए? What would you say on that? See, the fabric has to be flawless. मतलब बहुत जितना अच्छा फैब्रिक लोगे उसका एंड रिजल्ट उतना सुंदर आएगा. मतलब कस्टमर के पास जो आपका प्रोडक्ट आता है, सबसे पहले तो डिज़ाइन ही देखता है. सेकेंड थिंग जो कस्टमर देखेगा आपके पास जब प्रोडक्ट पहुंचेगा तब उसका है फैब्रिक. सो देयर शुड बी नो कॉम्प्रोमाइज इन टर्म्स ऑफ फैब्रिक. फैब्रिक क्वालिटी हैज टू बी सुपर्ब. सो इफ यू आर वांटिंग टू डू दिस काइंड ऑफ बिजनेस, तो जस्ट मेक श्योर दैट योर फैब्रिक इज ऑन पॉइंट. No compromise डिजाइन there. एक इम्पॉर्टेंट चीज है बट फैब्रिक इज एन इक्वल सपोर्टर ऑफ योर डिजाइन. So both the things should go hand in hand. It's very important. And how do you as in define the price then? कि आप fabric पे जाते हो, आप design की मेहनत पे जाते हो, how do you define prices for different sarees? Actually सब मिलाकर price मतलब उसका प्राइस फाइनलाइज किया जाता है. द रॉ मटेरियल, द हार्ड वर्क दैट हैज बीन पुट ऑन, द लेबर, द कलर्स दैट आर यूज्ड. सो दैट इज दैट कंट्रीब्यूट्स. एंड नंबर वन व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट इज दैट वी आर सेलिंग हेरिटेज प्रोडक्ट्स. हेरिटेज मतलब कि मैं कोई भी प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं, हम बना रहे हैं, उन दोज प्रोडक्ट्स शुड बी पास्ड ऑन. मतलब आपकी मम्मी आपको देनी चाहिए और आप अपने बच्चों को देने चाहिए. Yeah. So
So you know, those are the kind of products that we are making at the moment. हम्म So we want to continue doing that. बट इसमें आपने ऐसा सोचा नहीं कि दैट्स डिफिकल्ट टू सेल ऑल्सो, बिकॉज ये एक चीज आती है ना कि मार्केट में एज एन एक्सेप्टेंस कितना है, पीपल वांट दैट और पीपल वांट सिंप्लिसिटी, हाउ डज दैट वर्क, हाउ इज द मार्केट दोनों देयर? तरह के कस्टमर्स हैं मार्केट में, हाँ, राइट? फॉर यू लग्जरी कैन बी कोच, बट Yeah. फॉर somebody in south, luxury can be a Kanjivaram sari. So मेक सेंस. yeah. हाँ, आई थिंक द मार्केट इज देयर, यू डोंट Right, हैव टू right. थिंक अबाउट कि यार ये लोग खरीदेंगे या ये लोग खरीदेंगे, हाँ. ऐसा कुछ नहीं है. So the both you know have their audience, and it's हाँ. not that जो साउथ इंडियन कांजीवरम साड़ी खरीदता है वो कोच नहीं खरीद सकता है, जो कोच खरीदता है वो नहीं खरीद सकता है. Yeah, So you know that's there there. can be aspiration for both. How do you sell, as an online or Just online. We are just online. you're just online? Yes. Why no retail? We want to start retail, but soon. Soon. तो Yeah. ऑनलाइन का कैसे हो रहा है आपका, वेबसाइट और Yeah, we have our own website and we sell it only through our website. एंड from where are the orders coming majorly? अगर internationally है, इंडिया में which states, how is it that way? We have majority of orders coming from NRI clients. NRI clients. Yeah. I think this is one thing मैं actually जानना चाहती थी. Yeah. Internationally people, I think, understand more. जो आपने बोला ना आर्ट की जो बात होती है, is that true? How is it that No, way? what I feel is that you know, and I've spoken to a lot of clients also. So you know what I feel when I speak to them is कि वो लोग अपने देश से दूर है, हम्म. ठीक है? तो right, so that is one thing. So you know such kind of products keep them you know closer to the हाँ. yeah, that is one thing. Second, अगर उन्हें कुछ साड़ी खरीदनी होगी, so they would want to invest in pieces जो कि मतलब they don't wear sarees regularly, right? So why not invest in pieces जो आप you know संभालो, मतलब संभाल के रखो. मतलब डिजिटली प्रिंटेड साड़ी लेके उनको कुछ मतलब क्या ही मिलेगा, हाँ. so because they are not buying sarees regularly, they'll buy sari once in a while. So then in that case they would like to buy a sari which is like you know Closer which, to their heritage. yeah, and which on which they can invest and they would like to keep it forever, right? बट इसमें जो आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट अभी डिजिटली प्रिंटेड पॉइंट बोला है, Correct. इसमें मैं आप थोड़ा आप डिटेल में समझा सकते हो, बिकॉज जो आपने बोला लाइक हाँ. दिस इज कम्प्लीटली हैंडमेड, वट एवर यू आर डूइंग, Yeah. एवरीथिंग इज हैंडमेड, वट एवर डिफरेंट आर्ट दैट यू आर फॉलोइंग, Hmm. तो उसमें बहुत मेहनत लगती है एंड इट्स प्योर एक तरीके से मैं बोल Correct, सकती correct. हूँ. एंड द सेम डिजिटली प्रिंट काफी हाँ. चीजें अवेलेबल हैं जो लोगों को Correct. लगता है कि यार कम रेट पे ये अवेलेबल है, लेट्स Correct, बाय correct, दैट. correct. सो हाउ डू यू डिफरेंशिएट एज अ लेमैन, लोगों को कैसे समझ आता है कि and what are the wrong things that are happening in the market when it comes to sari industry? What would you say? See, digital and handmade में बहुत बड़ा डिफरेंस है. When a product is made with hands, वो सिर्फ हाथ से बना हुआ ही नहीं होता है, उसमें एक इमोशनल कनेक्ट होता है, बहुत सालों का आर्टिस्ट का एक्सपीरियंस होता है, उसका यू नो उसकी उस आर्ट के प्रति लगन होती है जो उसने प्रैक्टिस की है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. सो यू नो दैट हैज़ एक्चुअली कम आउट. सो जब भी कोई आर्टिस्ट कुछ प्रोडक्ट बना रहा है या कुछ भी साड़ी बना रहा है या फिर कुछ और पेंटिंग ही बना रहा है, तो वो उसका अपना सोल उसमें डालता है. True. So they are not making a product, they're making their years of experience into life. Bringing an art Yes. into life. And that is what is that's what differentiates a handmade product from a machine made product. Digital Okay. print is machine made, right? And when a handmade product is actually heart made product. So it has true. a soul to it. So true. People you know invest that kind of money to buy art Because they understand art. because they understand art. Yeah. Number one. Number two, they know the kind of you know value that has been put into you know the kind of hard work that has been put into use. So there is a difference between a painting and a poster. There is a difference between a plastic tree and a natural tree. So that's the difference between machine made, digitally printed made versus handmade. But how do you manage? I mean, जो आप बना रहे हो product, that demands a lot of consistency and लोगों का आता है ना कि and how much time does it take? I mean, एक साड़ी बनाने में when it comes to handmade sarees. It depends कौन सा आर्ट फॉर्म. जैसे कोई मधुबनी साड़ी है तो 5 to 6 days मिनिमम आप मान के ही चलिए. अच्छा, एक साड़ी बन जाती है. एक साड़ी बनेगी, ठीक है. Okay. 5 to 6 days मिनिमम. हाँ, डिपेंडिंग ऑन द डिजाइन इट कैन एक्सीड ऑल्सो. ठीक है. फिर पिछवाई साड़ी है, अगेन इट डिपेंड्स ऑन द इंट्रिकेसी.
आर्टिस्ट का कितना एक्सपीरियंस है उस काम को करने बट में। एवरेज उतना ही लगता है। एवरेज अब मान के चलिए कोई भी साड़ी बनती है तो उसमें 3 से 4 दिन मिनिमम लगते ही हैं। तो आप जब भी कोई ऑर्डर लेते हो तो यू टेक टाइम की, और उसमें आप ऐसे कस्टमाइजेशन भी लेते हो क्या कि? Not we are not actually we are not doing too much of customization because obvious reasons that it becomes very expensive when it comes to customization because एक तो हम यहाँ regularly बना रहे हैं कोई चीज़ और एक चीज़ के लिए आपके लिए बिल्कुल अलग से Of कलर्स course, बने। हाँ, We of do course. customizations। आप certain जैसे ये सारी आप मुझे बोलो किसी और कलर में बना दो, yes we'll do that कलर for you। वाइज, हाँ जैसे पर हमारे कुछ क्लाइंट्स हैं who understand art a lot। अगर कस्टमर की हमको लगता है has a good understanding of art, who can understand कि आपने जो मुझे एग्जैक्ट दिया है वो वैसा नहीं बन सकता है, आप उतने नॉलेजेबल हो, वी कैन कस्टमाइज फॉर यू। बट मेरे को ऐसे बात करके आपको ऐसा लग रहा है कि ऐसे जगह डिजिटली जो प्रिंटेड होता है, जो हैंडमेड प्रिंटेड होता है, तो आपको कभी कभी इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन नहीं होता होगा कि यार इतनी मेहनत करके एक जो हैंडमेड प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं और वही चीज़ कॉमर्शियलाइज इतनी ज़्यादा हो गई है, एंड दैट टू इंडिया का हेरिटेज है ये, तो डू यू फील एनीथिंग, एनी फ्रस्ट्रेशन? आपको ऐसा फील नहीं होता कि पीपल शुड नो मोर अबाउट इट, कि व्हाट दे आर एक्चुअली परचेजिंग? यार इट हैपेंस या समटाइम्स मतलब मेरे को ऐसे सुन के ऐसा दिस वाइब, दिस क्वेश्चन केम इन माय हेड। राइट, बट मतलब सबके गुड पॉजिटिव पॉइंट्स भी और नेगेटिव पॉइंट्स भी। यस इट इज रॉन्ग अप टू एक्सटेंड। मतलब फॉर एग्जांपल हमारी एक साड़ी है, सो देयर आर सो मेनी डिजिटल, मतलब हमारी फोटोज के साथ ही सानवी साड़ी करेक्ट आपकी करेक्ट वायरल राइट हुई थी, हाँ। सो हमारी पिक्चर्स के साथ में इट इज अवेलेबल इन डिजिटल प्रिंटेड फॉर 700 रुपीज 800 रुपीज। सो यू डेफिनेटली फील बैड यार ये तो हमने डिजाइन की थी, ये हमारी साड़ी थी, इट्स अवेलेबल, बट देन यू हैव टू मूव ऑन। यू कांट जस्ट कीप ऑन sticking to that one thing ki But don't we have any as in laws for that कि we आपके have, but designs then you have to people get cannot? your designs patented and all, which is again a very lengthy process, process, right? हाँ. So So it's all about understanding कि जिसको तुम्हारी आर्ट फॉर्म का पता है, they will जी। know कि ओरिजिनल बाय और डिजिटल में correct क्या correct डिफरेंस दोनों में है। क्या डिफरेंस है। and also I feel commercialization is bad but sometimes it's a boon also। see Of how course. I'll tell you, अगर जैसे फॉर एग्जांपल लेट्स टॉक अबाउट पिछवाई, ठीक है, पिछवाई का इट्स डिजिटली अवेलेबल, प्रिंटेड अवेलेबल, तो जो डिजिटल के कस्टमर्स है वो डिजिटल के ही रहेंगे। पर वो इतना ज़्यादा कमर्शलाइज हुआ, उससे क्या हुआ, लॉट ऑफ आर्टिसंस ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग वर्क, क्योंकि सब लोग डिजिटल प्रिंटेड नहीं खरीदना पसंद करते हैं, राइट? कुछ लोग वैसे भी होंगे जिनको ओरिजिनल साड़ी उस हिसाब से चाहिए होगी। सो थिंग्स वर्क इन बोथ द वेज, राइट? सो ज़्यादा कमर्शलाइजेशन से भी कभी कभी कोई आर्ट फॉर्म रिवाइव हो जाता है कि ओके मेक सेंस, हाँ, मतलब एंड ऑफ कोर्स लाइक यू मेंशन इंडस्ट्री इतनी बड़ी है, यू कैन नॉट स्टॉप एंड करेक्ट बट हाँ, थिंग्स विल हैपन, और Right. इसकी भी इंडस्ट्री बड़ी है एंड आई थिंक पीपल आर अंडरस्टैंडिंग दोनों मोर। के ऑडियंस है। मैं थोड़ा डीप डाइव जो मैं बोलती हूँ कि पहले लेट्स डू दिस, कि जो आपने डिफरेंट डिफरेंट आर्ट फॉर्म्स बताए हैं, हाँ। जैसे लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ब्लॉक प्रिंट, जो ठीक है। डिफरेंट डिफरेंट आपके आर्ट फॉर्म्स हैं। हाँ। तो मेरे को थोड़ा समझना है अब कि जैसे आपने ब्लॉक प्रिंट की अगर मैं बात करती हूँ तो पहले क्या होता है, व्हाट इज द साड़ी अबाउट, ब्लॉक प्रिंट्स में क्या होता है, कैसे बनता है, लेट्स स्टार्ट। तो पहला ब्लॉक Okay. प्रिंट का अगर आप बताएं। देखो बहुत तरह तरह के ब्लॉक प्रिंट्स है। अजरक इज अगेन अ ब्लॉक प्रिंटेड टेक्निक, ठीक है। ठीक है। देन ब्लॉक प्रिंट क्या होता है, उसमें व्हाट हैपेंस? वुडन का एक ब्लॉक होता है, ओके, जो ठीक वो, है। हाँ ठीक है, उसे जो भी फैब्रिक है उसके ऊपर प्लेस करते हैं। ठीक देन है, देयर इज अनदर ब्लॉक, हाँ। एक आउटलाइनिंग के काम आता है और जो दूसरा ब्लॉक है वो कलर फिलिंग के काम आता तो वो है। डिजाइन्स कैसे बनवाते हो आप ब्लॉक के? दोज आर कार्व्ड ऑन वुड। तो आप देते हो डिजाइन्स की, ये डिजाइन कार्व होना है? हम लोग ब्लॉक्स कटवाते हैं हमारे हिसाब से। तो ऐसे ये लोकल आर्टिसंस आप ढूंढते होंगे इसके लिए? हाँ, मतलब लोकल नहीं, इट्स अगेन इन इंडिया डिफरेंट पार्ट, सबका स्पेशलाइजेशन है। फॉर एग्जांपल जयपुर में जैसे सांगानेरी ब्लॉक प्रिंट्स वगैरह है, ये काफ़ी चलते हैं। ठीक है। और इफ़ यू गो टू अगेन गुजरात, तो वहाँ पे वो कच्छ के जो होते हैं। अजरक ब्लॉक प्रिंट हाँ। काफ़ी चलता है, ओके ठीक ओके। है। मतलब इफ़ यू गो टू अगेन साउथ में, तो वहाँ पे कलमकारी ब्लॉक प्रिंट्स भी मिलते हैं। देन इफ यू गो टू वेस्ट बंगाल, वहाँ पर बाटिक में Okay. भी ब्लॉक प्रिंट अवेलेबल अच्छा, है। तो ट्रेडिशन वाइज, बट द आइडिया इज कि जहाँ का जो भी है उस हिसाब से आप ब्लॉग्स बनवाते हो एंड Correct, यू correct. पुट इट ऑन No, द but we साड़ी। are doing like modern block prints like stripes. We're playing with geometrical designs Okay. and not something very very traditional. So हाँ. we keep a traditional fabric like tussar. हम्म। तो हम मेक श्योर करते हैं कि यार जो डिजाइन है दे शुड बी अट्रैक्टिंग यंगर ऑडियंस ऑल्सो। तो अगर हम या तो फैब्रिक हम
अगर हम फैब्रिक ट्रेडिशनल ले रहे हैं तो हम उसके डिज़ाइंस कंटेम्प्रेरी, वी कीप इट मॉडर्न। और अगर हम डिज़ाइंस फ्यूजन आप मॉडर्न, हाँ, रखते अगर हम हो। डिज़ाइंस बहुत ही मॉडर्न, अगर हम फैब्रिक मॉडर्न ले रहे हैं तो हम डिज़ाइंस उसमें फिर ऐसा करते हैं कि हम जितना कर ट्रेडिशनल रख सकें। हम्म। सो इट गिव्स अ मिक्स ऑफ बोथ ओके, व्हाट एंड इज वर्किंग फॉर यू? आई मीन बोथ आर वर्किंग। बोथ आर वर्किंग। एंड आपका या ऑडियंस क्या है? मतलब जनरली इट्स यूथ और नो हाउ नो, इट्स दे आर मिडिल एज्ड विमेन, हु अंडरस्टैंड्स दैट? या हु अंडरस्टैंड। और इसमें फैब्रिक जनरली आपने कौन सा बोला, कौन से यूज See, होता we है? use variety of fabrics. We are using modal, we are using tussar, we हम्म, are using silk, then we are using. I mean, we are using a lot of डिफरेंट फैब्रिक्स। yeah. क्या कॉस्ट रेंज एवरेज आती है ब्लॉक प्रिंट्स की, जो स्टार्टिंग होती है कि मिनिमम तो एवरेज इतना होता ही है? See, these are like all hand woven fabrics. अच्छा, So, फैब्रिक इसमें सब हैंड हाँ, वोवन होता मतलब है, हाँ, ठीक है। मतलब tussar silks are hand woven, तो उनका एक अलग प्राइस रेंज होता है। modal silk में again, ओके, फैब्रिक वाइज प्राइसिंग जाती yeah, है। it depends on the fabric. Again, the art form, the time taken. So there are a lot of factors बट actually फिर which भी एक contribute. एवरेज होता होगा ना कि कितना उसमें, फॉर एग्जांपल अगर जो कॉमन है कि अगर सिल्क की ब्लॉक प्रिंट्स है, सिल्क साड़ीज का है, तो एवरेज कितना जाता होगा उसका? या टाइम, हर डिजाइन का एक टाइम है। डिजाइन वाइज भी होता है? करेक्ट, इट डिजाइन वाइज कितना ठीक है, कॉम्प्लेक्स डिजाइन है। ठीक है, सो या ओके, ठीक है। लेट्स टॉक अबाउट पिचवाई देन। पिचवाई, व्हाट्स द आर्ट फॉर्म? पिछवाई हमारे राजस्थान का आर्ट है। तो पिछवाई का पहले मतलब समझते हैं। पिच मतलब होता है बैकड्रॉप, और पिच का मतलब होता है पीछे, सॉरी, ओके, और वाई का मतलब होता है हैंगिंग। तो मतलब भगवान के पीछे लटकाने वाली हैंगिंग को ओके, हम पिछवाई कहते हैं। तो पिछवाई जो है उसमें लॉर्ड श्रीनाथ जी के बारे में बताया। लॉर्ड श्रीनाथ जी कृष्ण भगवान, तो उनके 8 ईयर्स का जो, मतलब 8 साल के जो थे, उसका रूप बताया है। अच्छा, करेक्ट, हाँ। तो जो कृष्ण लीलाएं हैं गोपियों के साथ खेलते हुए, गायों के साथ में, तो वो उसमें डिपिक्ट की गई है। तो वो ओ, पिछवाई है, हाँ। तो हर जो भी पिचवाई आर्ट फॉर्म होगा उसमें ये चीजें होंगी, मतलब कॉमन श्रीनाथ होगी, जी होंगे और ओ, लोटस होंगे, हाँ जी, हाँ जी, गोपियां होगी, हाँ जी, काउज होंगी। हाँ, सो दीज आर, दिस इज अ आर्ट फॉर्म ऑफ राजस्थान, नाथद्वारा, जो 17th सेंचुरी में ओरिजिनेट हुआ है। और ओके, सो इसमें हाउ, काफी अभी, मतलब नाउ एवरीबडी वांट्स टू हैव अ पिछवाई। हाँ, दिस यूज्ड टू बी एन आर्ट फॉर्म एंड वो अब हम जो आपने बोला, यू आर ब्रिंगिंग इट करेक्ट, टू द टेक्सटाइल साड़ी, राइट राइट राइट? तो राइट। इसमें क्या होता है, कपड़े और सब इसमें हैंड वोवन पिछवाई होता जो है? है वो कपड़ों पे ही बना, कपड़े मतलब पेंटिंग जो है वो भी कपड़े पे ही बनाई जाती है, सिल्क के कपड़े पे या विच कॉटन के कपड़े पे। सिल्क और कॉटन जनरली पेंटिंग भी है यूज वो होता भी, है? हाँ। तो इट वाज इजियर टू replicate them on sarees, or dupattas or kurtas. एंड वो भी प्रॉपर ड्रॉ करता है Yes, आर्टिस्ट? yes, दैट्स yes, सो yes, वंडरफुल एंड yeah. इंटरेस्टिंग। हाउ, इसमें भी काफी टाइम लगता ही होगा, आई एम Correct, श्योर। correct, 5-6 days यू आर सेइंग correct. एवरी? Again, it depends कि साड़ी क्या है, हाँ, डिजाइन क्या है, कितना टाइम लगेगा। So again, it हम्म, depends on these 3 factors. but very, I think pitchway is something that is like there in lot of demand also. I think Correct, right. people are understanding more. क्योंकि एक और रीजन है, श्रीनाथ का मतलब भी बहुत फैसिनेटिंग है। श्रीनाथ जी कृष्ण भगवान को कहते ही हैं, बट श्री और नाथ ये दो चीजें हैं। श्री मतलब लॉर्डेस लक्ष्मी को कहा गया है, और नाथ मतलब हम भगवान को कहते हैं। तो ये दोनों मिला के प्रॉस्पेरिटी का एक सिंबल है, तो लोग इसलिए प्रॉस्पेरिटी के लिए, Oh wow. सो दिस इज वन ऑफ द रीजन why people are keeping them in their houses. Also, lotus has a very good deep meaning. So इसका तो फिर I think occasion wise भी it should be worn that way only. It depends, like whatever, हमारे पास जितने भी कस्टमर आते हैं बोलते हैं कि हमें मंदिर में ये फंक्शन है, मेरा हाउस वार्मिंग है, उसमें साड़ी पहननी है, Something very because it's very हाँ, auspicious occasion, yeah, people like to wear पिछवाई। Yes, wow, wonderful. yeah. कलमकारी क्या होता है पहले डिजाइन? कलमकारी एक्चुअली श्री कलस्त्री में इसका ओरिजिनेशन हुआ है। एक पेन होता है जो टैमरिन ट्री से बनता है, उससे ड्राइंग की जाती है, और फिर उसमें नेचुरल जो नेचर से इंस्पायर्ड होते हैं वो कलर्स लेके कलर किए जाते हैं उसके अंदर। सो Okay. दैट इज कलमकारी ऑल अबाउट। नेचर इंस्पिरेशन होता है इसमें? नेचर इंस्पिरेशन नहीं होता है, नेचर से ड्रॉन जो होते हैं कलर्स, जैसे अनार हो गया, Oh wow. so like that, so those are the colors that are, so the options are limited in nature. काफी सारे कलर जो है जो नेचर से ही मिलते हैं, ग्रीन है जो प्लांट से मिलता है, like that, colors are drawn from the So nature. interesting. And Okay. then in that, we're not doing pen kalamkaris, we're doing kalamkari inspired saris, because the only reason why we're doing
inspired kalamkari sarees is not because we want to scale up. The only reason why we are doing inspired kalamkaris is because I thought, for me, I wanted to actually spread art. So, and what I thought is that one of the steps of kalamkari is dipping it into milk and then making it. तो उससे जो product है उसमें एक smell होती है, so which may not be convenient for lot of clients. अच्छा, Right. okay. So, there's always a pungent smell which will come in your sari. If it is an original sari, there will be an smell which will always be there. पेन को डिप करके जो ड्रॉ होता है। पेन कलमकारी जो होती है वो, so एक ease of wearing मैं अपने customer को देना चाहती थी, not because I wanted to get into cultural inappropriation. There was a ease that I wanted to give it to my customer. That was the only reason we तो did- हाउ डू यू डू इट? आपका कैसा होता है? So, डिजिटली होता है? No, we don't do digital. We don't do anything digital. So we, again we also have a pen. खुप्पी होती है, उसमें हम कलर फिल करते हैं. Those are pigment colors. अच्छा, क- बस yes, कलर्स आपके correct. नेचुरल कलर्स वो नहीं और जो होते। अंदर हम फिलिंग करते हैं, those are those are silk dyes. So the outcome is little brighter. So that was the, and we are doing also actually जो native kalamkari है, it's too figurative. Now there are a lot of brands which are doing small floral designs also. So we as a brand thought that let's just give customer something which has ease of wearing, कि आपको उसको पहनने से पहले 2 दिन सुखा धूप में ना देनी पड़े. So we as a brand thought that let's give a customer a more ease in wearing kalamkari. So that was the only reason that we do kalamkari inspired hand painted sarees. So what we do is we use लाइक मैंने बताया खुप्पी होती है, उसके अंदर हम लोग कलर फिल करते हैं ब्लैक कलर का, उससे फिर आउटलाइन करते हैं. जैसे ये वाइट फैब्रिक है, ठीक है, इसका आउटलाइन होता है उस खुप्पी से. जो ये ब्लू कलर है वो सिल्क डाई है जो अंदर ब्रश से फिल किया जाता है. इफ द साड़ी हैज अ बैकग्राउंड कलर, जैसे येलो है, तो जो वाइट है ना वो भी पूरा पेंट होता है हाथ से. सो द एंटायर वाइट फैब्रिक इज इवेंचुअली पेंटेड. So this ये is पेंट्स the कौन से यूज होते हैं? silk डाई, dyes, सिल्क silk डाइस. dyes, तो ये yeah. कभी नहीं जाते हैं, ऐसा होता है? See, these are dry cleanable products. हाँ, पर अगर आप got उनको मतलब there is a way of protecting your sari, so silk has to be protected because you cannot wash it. Of course. हाँ, you Right, cannot wash you it. cannot yeah. wash them. Right? Got it. Wow, that's very, I think, interesting. और आपके डिजाइन्स आपने बोला फिगरेटिव और नहीं है हमारे नहीं figurative. है आपके? We are only doing floral Floral, designs. okay. Just because we wanted to cater to a younger audience. और इसमें जो क्लोथिंग होता है टेक्सटाइल, मतलब एज इन फैब्रिक कोई भी यूज कर सकते हैं या फैब्रिक स्पेसिफिक रहता We है? are using silk only. We have not tried also on other fabrics. We use silk only. अच्छा, और इसके कलर्स कंपैरेटिवली ऐसा कुछ होता है कि इनमें जनरली डार्क शेड्स होते हैं या कलर्स आर वाइब्रेंट और See, because we व्हाटएवर? are doing inspired, we can do any You color can do of your anything. choice. Yes. Makes sense. Yeah. Next is अजरक. अजरक इज माय फेवरेट क्राफ्ट. हाँ. तो अजरक सिंध है पाकिस्तान में, वहाँ से डिराइव हुआ है, मतलब वहाँ का क्राफ्ट है. बट माइग्रेशन की वजह से अब देयर आर लॉट ऑफ आर्टिसंस बेस्ड इन गुजरात हु आर डूइंग अजरक. Okay. सो अजरक इज अगेन रेजिस्टेंट लाइक ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्निक, अच्छा. जो वुड से ही फैब्रिक्स के ऊपर प्ले किया जाता है. एंड देन अच्छा, it's a how block block printing printing. technique Yeah, only. correct, One correct. of the block printing technique. correct, Okay. right. इसमें तो I think dark colors वगैरह ही नहीं, ज़्यादा जाते हैं अजरक ना? is again we use natural dyes only natural dyes. So there are color restrictions. So only blue is available. Then we have yellow, then we have red, and then we have green Okay. and black. So these are the only 5 colors जो अजरक में होते हैं. हाँ, dark shades में ही होता है ना? I हाँ, think these are like majorly. yeah 5 And this is shades. like whole printed Yes. रहता है इसमें पूरा. Correct. और इसमें एक और चीज़ है, when we do अजरक, क्योंकि ये डाइज है वो नेचुरल डाइज है, तो हो सकता है कि आपका एक लॉट है वो इंडिगो का बहुत ही डार्क ब्लू में आए, और हो सकता है वही नेक्स्ट लॉट आप जब करने जाओ तो आपका कलर एकदम लाइट आए. सो हाँ, दीज of आर लाइक course. फ्यू ऑफ द that's what makes handmade different from Yeah, one saree to another. Yeah. So that is I one think thing. आप आपके केस में बोल सकते हैं कि जो भी आप क्रिएट करते हो that's like a unique piece itself. Every piece is unique. Every आप सेम कर ही नहीं सकते, कर ही क्योंकि नहीं ब्लॉक भी सकते आप हो. हैंड से प्लेस कर रहे हो. हाँ. तो हो सकता है कभी कोई ब्लॉक ऊपर भी चला जाए, कभी कोई ब्लॉक नीचे भी चला जाए.
So each sari is unique. तो ऐसे कभी कुछ मिस्टेक हो जाता है तो उस केस में आप क्या करते हो कि कुछ डिजाइन में गड़बड़ हो गया, कलर इधर उधर हो गया, हाउ डू यू So हैंडल दैट? people understand and अगर हमको लगता है कि ये ज्यादा हुआ है, so we make sure कि हम कस्टमर को बताएं कि ये लाइन हाँ, इधर हाँ. से इधर हो गई है. Are you okay with us sending the piece or should we send another piece? अगर कस्टमर को अंडरस्टैंडिंग है तो they will 100% accept it. और अगर नहीं भी है so we all And I think art is something जिसमें कुछ भी इधर हो, you can create an art out of it. Correct, मतलब correct, that's right. the beauty of it, Correct, I would say. exactly, yes. आपको ऐसे डार्क जनरल क्वेश्चंस में को आ रहा है, लाइट कलर्स में ज्यादा आर्ट में डिमांड होती है या डार्क कलर्स में? हाउ डज दैट वर्क्स? People want Actually more. depends on the season. Nothing like that Yeah. ऐसा कि वो जैसे कुछ होता गर्मी है तो people like light colors. हाँ. और अगर वापस हाँ, season तो अगर depends. हाँ festive season है तो people prefer dark shades. Got it. ठीक है. मधुबनी? मधुबनी again it comes from बिहार. Okay. बिहार में गांव है मधुबनी, तो वहाँ की लेडीज है इवेंचुअली जो अपना सुबह का काम करने के बाद में दे ऑल सिट टुगेदर पेड़ के नीचे और सब मिलके दे डू मधुबनी आर्ट. तो उसके जो मोटिव्स है दे आर इंस्पायर्ड बाय जैसे कि छठ पूजा हो गई उनका जो Motifs फेस्टिवल. मतलब? मोटिव्स मतलब उनकी डिजाइन है ठीक है. वो वहीं से इंस्पायर्ड है. जैसे कि छठ पूजा हो गई, बिहार में छठ पूजा काफ़ी बड़ा फेस्टिवल माना जाता है. छठ पूजा है तो वो उसके ऊपर है. उसके बाद में कृष्ण लीला पे भी है, बनाते हैं वो लोग. अच्छा. हाँ. और क्या फॉर्म क्या होता है? मतलब इट्स प्रिंट होता है, क्या होता है? नहीं, प्रिंट नहीं होता है, वो पेंटेड रहता है. मतलब एक अच्छा, it's ब्लैक कलर completely में printed. आउटलाइन रहती है. अगर जैसे सपोज कोई पेड़ है तो उसका ब्लैक कलर से पहले आउटलाइन किया जाता है, फिर उसमें छोटा छोटा माइन्यूट उसमें कलर फिलिंग नहीं होता है, लाइंस ही होती है. ओह, लाइंस ही होती है. ओके. तो ये सब लेडीज मिलके एज अ कम्युनिटी दे कम टुगेदर अपने घर का काम करने के बाद में. इट्स लाइक एन एक्स्ट्रा लाइवलीहुड फॉर देम. तो एवरीवन जो भी अगर हैंडमेड मधुबनी बनवा रहा है, एवरीवन इज गेटिंग इट फ्रॉम बिहार ओनली, मतलब इफ इट दैट्स इज लाइक नॉट अ थिंग. डिजिटली प्रिंटेड देन यस, अगर वो बिहार से ही बन के आ रही है. हाउ डिड यू मेट देम? आई मीन यू वेंट देयर? So we have community of artists, you right? mentioned, yes, So yes, yes. yeah. Wow, So wonderful. we just So came across one and then people wanted to connect more. हाँ. हमने 2-3 artists से शुरू किया था मधुबनी में. हाँ. Now there are 10-12 ladies who are working for us and same applies everywhere. We started with 1 unit अजरक में और now we are working with 4 units. तो उसमें आप डिजाइन्स जो होते हैं वो हम हाँ right इस करेक्ट हम लोग इसके डिजाइन्स आप देते हो जी हम उनको? लोग डिजाइन्स देते हैं और इसमें कोई ऐसे, जैसे आपने पिछवाई में बताया कि श्रीनाथ जी का है, इसमें ऐसे कोई स्पेसिफिक होता है या इट्स इसमें हम थीम देते हैं. थीम देते हो? करेक्ट. जैसे जैसे कि सपोज करवा चौथ थीम दे दिया. करेक्ट. Wow. तो उस तो ये हिसाब से ओकेजन बेस्ड ज्यादा होता है, मधुबनी इज मोर टुवर्ड्स दैट? नहीं, नॉट रियली ओकेजन बेस्ड. मतलब दीज आर लाइक हेरिटेज साड़ीज, राइट? तो डिपेंड करता है कि कौन किस डिजाइन में उसे बनाना चाहेगा. तो Wow. उस बेसिस पे आप भगवान वाली डिजाइन बनवाना चाहते हैं हाँ. कि आप मतलब पूजा वाली डिजाइन बनाना चाहते हैं या आप नेचर से इंस्पायर्ड डिजाइन बनाना चाहते हैं. मतलब दैट लिटरली शोज जो आपने स्टार्ट का एसेंस बोला था ना कि एक आर्ट को आप Correct, लेके जाना है. correct. अब आप जब समझा रहे हो तो पता चल रहा है कि हाउ द आर्ट इज कमिंग आउट. लिटरली दैट्स वंडरफुल यार. थैंक यू सो मच. नेक्स्ट इज बटीक. बटीक आई बाटिक बाटिक. हाँ. ये वेस्ट बंगाल से है. तो इसमें जो होता है वो क्रैक इफेक्ट दिया जाता है. क्रैक इफेक्ट? हाँ. वो क्या होता है? विद द हेल्प ऑफ वैक्स. ओके. Wow. वैक्स से मतलब 2 तरीके होते हैं इनको करने के. एक तो या तो वैक्स से आउटलाइन कर लीजिए और फिर अंदर कलर फिलिंग कीजिए. फिर जो इसका वैक्स है वो बाहर हटा दी, मतलब निकाल दिया जाता है. तो एक वाइट कलर की आउटलाइन फॉर्म हो जाती है. वैक्स का वो, करेक्ट. हाँ. और एक है आप क्रैक देते हो. आप पूरी साड़ी के ऊपर पहले मतलब वैक्स लगा के और फिर उस पे यू डू क्रैक इफेक्ट. ओके. राइट. तो वो एक Why टेक्सचर wax? देते हैं But मतलब ये जस्ट टू गेट द टेक्सचर. एक क्रैक दिखे उन पे Okay. क्रैक्स दिखे. तो इसमें भी काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि कभी क्रैक्स ज़्यादा आते हैं, कभी क्रैक्स लाइट आते हैं. बट इवेंचुअली लाइक आई टोल्ड यू इट डिपेंड्स कि कस्टमर की इतनी अंडरस्टैंडिंग है, उसके ऊपर इट डिपेंड्स. तो इसमें डिजाइन्स वगैरह सब सो ये क्रैक करा जाता है. कोई भी कलर डिसाइड कर लिया, उसका क्रैक हो गया और फिर उसके ऊपर आप फ्लावर्स वगैरह जो भी आपको बनाना है, डिज़ाइन है, बर्ड्स है, फ्लावर्स हैं और लीव्स है, व्हाटएवर यू वांट टू गेट डन, देन यू कैन गेट इट डन बट ऑन द क्रैक्स. ये बंगाल It इंस्पायर्ड comes है? from West Bengal, yes. West Bengal. Oh wow, lovely. I mean that's Yeah. so interesting, and I am like a literally layman. मतलब Like, you yeah, can, yeah. and I think that's for most of the people जो Right. art
I think थोड़ा बहुत समझते हैं, but nobody knows. Correct, And they correct. should, I mean, I believe that. Correct, right. What's your, I mean, that one favorite साड़ी जो होती है ना, हर इंसान का एक favorite design हाँ. जो आपने कभी बनाया, what is yours? Uh, I'm sure बहुत होंगे, but सभी एक है हाँ क्योंकि मुझे सभी पता हम है। ही बनाते हैं. नहीं, but तो- your for जो I love starting में Ajrak, बनाते I love हैं. Ajrak, I love my kalamkari inspired sarees also. Which one is this? This is This is Mana. Mana. The name is Mana, right? Okay. So this is What is this? Mana is another art form. no, this is kalamkari inspired saree. Kalamkari The name of the inspired. saree is that. I thought you asked. How do you name your sarees? That Prekshita does. Marketing. Yeah. Nice, nice. Yeah. Okay, तो but मैं यही पूछ रही हूँ आपके जैसे आपके जो ये साड़ी का एज इन जो मैं Correct. जो मैंने फर्स्ट चीज पूछी आपको कि वो फेवरेट साड़ी का हर इंसान का जो हाँ, होता है. हाँ, right. माय क्वेश्चन व्हाई आई आस्क्ड दिस कि बहुत बार ये होता है कि यू क्रिएट अ डिजाइन एंड यू फील कि दिस इज गोइंग टू बेट लाइक पीपल विल लव इट एंड देन व्हेन यू टेक इट इन द मार्केट यू फील यार उतना रिस्पॉन्स नहीं आया. तो हमेशा ऐसा कुछ ना कुछ होता हाँ, है कि हमेशा ही होता है. होता है. हमेशा ही होता है. हमको लगता है ये तो साड़ी बहुत ही अच्छी चलने वाली है हाँ. और वो नहीं चलती है, और जो हमको Yeah. लगता है बिल्कुल नहीं चलने वाली वो बहुत चलती है. तो मैं अगर आपसे पूछूं एक इंसान हु इज प्लानिंग टू बाय अ साड़ी एंड या कोई भी प्रीमियम बायर है वो जब एक साड़ी खरीदता है तो व्हाट डू दे एक्चुअली लुक व्हाइल बाइंग अ साड़ी? अनोना, तो हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इंडिया में साड़ी इज़ आर गो टू प्रोडक्ट, राइट. मतलब कोई भी इवेंट हो, ऑफिस में कोई मीटिंग हो या कोई अवार्ड सेरेमनी हो, शादी हो, संगीत हो, इट फिट्स इन ऑल द ओकेजन्स, राइट. और साड़ी जितनी अच्छी लगती है उतना आई थिंक कोई भी प्रोडक्ट अभी तक नहीं बना है जो Yeah. विमेन का लुक उतना एलिवेट कर सके. अग्रीड. Correct. So, what I feel is that whenever a customer is looking to invest in a sari, they look at the design, number one. They also look at the fabric that has been used, which is also very important. क्योंकि डिज़ाइन देखकर तो आप उससे mesmerize हो सकते हो, पर जब वो प्रोडक्ट आपके पास आएगा, so it should give a good feel also. And sari is very touch and feel based product. Yeah, So it should definitely. give a very good touch and feel also. Yeah, true. So so both the things should go hand in hand. Also जब आप उसे पहनो, so you should look different from everyone. So this is what people keep in their mind. Anything specific होता है in terms of कि whether the जैसे ब्लाउज हो गया कि whether it should be उस बना हुआ है, अटैच्ड है, ऐसे डिफरेंट चीजें जो बारीकी होती है ना कि बाद में कभी जब एक Yes. इंसान साड़ी बनवाने जा रहा हो, ऐसा कुछ स्पेसिफिक होता है जो लोगों को देखना चाहिए कि एनीथिंग दैट यू फील? See, आजकल ladies they have been very very they want to try sarees with different things, right. So आपने just because blouses की बात करी, so women are wearing sarees with crop top also. So women are giving sarees different look, they're styling it in very different ways. So people want to experiment. So this is what I feel, that sari is just not now, has not just remained sari, it has become like symbol of beauty and So- versatility also. I Correct, think right, I think right. there's no age, no style, Yeah. nothing when it comes to you Correct. can mix, जैसे आपने बात करी थी, Correct, mix match कर ही सकते हो हर Correct, चीज right, को. right. Exactly. So people are just using different ways of styling it, and they're wearing it and they're pulling it off also Yeah. very nicely. आपको क्या लगता है जो लोग बहुत ट्रेडिशनल और इनकन्वीनियंट बोलते हैं साड़ी को, Correct. व्हाट वुड यू से टू देम? See, had it been so inconvenient, तो मुझे नहीं लगता है कि लोग जो आज इतना साड़ी को पहनकर they are promoting it, they would have promoted it in a way, right, in that way. You talk about film festivals, you talk about award shows, you talk about international representation of sari. People have just represented sari like in a way that it has never been done before, right. They have worn saris in a way that for example, let's talk about Alia Bhatt, right. So she wore sari, right. And there are a lot of international fashion designers who have actually made the gowns so that they look like a sari. So people are actually understanding sari, not in India itself,
बट एवरीवेयर अक्रॉस द ग्लोब Yeah, yeah. कि और अगर आपको इतना ही अनकन्वीनियंट लगता है तो आजकल प्री स्टिच साड़ीज भी आती है विच मेक्स इट वेरी वेरी कन्वीनियंट. आपको बस एक बार यहाँ पे हुक लगाओ एंड इट्स वेरी इजी टू वेयर. Yeah, You yeah. do that, right? But calling it inconvenient, I think will not be correct, because this has been our, our mothers, they have worn sari and does all, and they have done And they all have the done all household, the, yeah, right? They yeah, have I done all used to the, think that, ठीक है. exactly, हाँ. उसके बाद में आप देखो कि मतलब हर काम साड़ी में हो जाता है. ट्रैवलिंग इट्स हैपनिंग, राइट? इट्स नॉट इम्पॉसिबल टू डू. बस मतलब द माइंडसेट हैज टू बी राइट, राइट? Yeah. आप पहले किसी चीज के बारे में ऐसे सोच लो कि अरे नहीं ये इनकन्वीनियंट है, तो इट विल बी इट विल बी Makes टेकन. sense. So, there have been number of times when we have spoken to a lot of clients, right? जिसमें एक कस्टमर है, वो कह रही है कि आई एम फ्रॉम बिहार एंड आई एम ग्रेजुएटिंग फ्रॉम दिस कॉलेज इन लंडन. सो मैं, बिकॉज आई एम फ्रॉम बिहार, आई वुड लाइक टू वेयर अ मधुबनी साड़ी. सो दे वांट टू रिप्रेजेंट देयर कल्चर कि मैं बिहार से हूँ तो मुझे उस दिन यही साड़ी पहननी है. सो आई वांट टू लुक लाइक दैट ऑन अ स्पेशल डे. व्हाई? बिकॉज इट कनेक्ट्स यू विथ योर रूट, राइट? जैसे एक और कस्टमर है, आई टेल यू. उनकी मदर को पेंटिंग का बहुत शौक है. So, throughout her life, she has been painting lotuses and all. So, she told me, so, listen, Lavika, my mom's 70th birthday is coming. So, I want to gift her a sari which has, lotuses. So, so why again? Again, because, it again connects you with your, there's an emotional connection. All your important events, you will always outshine. Yeah, and I think Right. this is one thing very perfect कि Yeah. बहुत सुंदर आर्ट फॉर्म की गिफ्ट साड़ी गिफ्ट की जा सकती है यार अपनी Correct, मॉम right, को. आई थिंक right. दैट विल बी लाइक अ वंडरफुल गिफ्ट. मतलब मेरी माँ तो बहुत खुश हो जाएगी अगर ऐसा कुछ जो आपने, बिकॉज दैट मेड अ लॉट. जो पिछवाई का आपने मुझे डिस्क्रिप्शन दिया है, Correct, right. इफ आई क्रिएट अ साड़ी आउट ऑफ इट एंड Right. give it to my mom, I think it will be wonderful. Yes, yes, Yeah. yes. And I This is think वो what जो I. जैसे जापानीज में बोलते हैं ना, किमोनोज आर लाइक देयर कंसिस्टेंट, हाँ. दैट्स लाइक अ थिंग. इंडिया में भी आई थिंक अब बन रही है, इट्स मूविंग टुवर्ड्स इट कि साड़ी इज लाइक द न्यू कंफर्ट फैशन नाउ. Yeah. या बट डू यू थिंक जो ये हमारा फास्ट फैशन है, या व्हाट्स द, डू यू सी इट एज अ कंपटीशन, एंड आर यू नो कि नहीं, पीपल, इंडस्ट्री बढ़ रही है and people are moving towards it, this is becoming the new fashion, how is it, where is it going now? See, fast fashion is something which cannot be ignored, right? आप, because as a woman you need to have a variety of clothing, right? तो आप आप थोड़ा सा ये रखना चाहते हैं, थोड़ा सा वो रखना चाहते हैं. So you want to keep different kind of things. And I think So, it's comfort also. Comfort is something Yeah. I personally feel कि it's very very important. Correct. And साड़ी are one of the most comfortable clothing. लोगों को Correct, ऐसा correct. लगता है कि it's not, but Correct. when you wear it and when you Correct. wear it right and when you get used to it, I think it's like one Yes. of the best. Yes. जो Yeah. नेगेटिव कमेंट्स आते हैं कि यार बहुत ही कौन पहनेगा, वो यूजुअली कम फ्रॉम पीपल जो पहनते ही नहीं Who है. never tried Yeah, giving it a correct, chance. correct. You're, So you have yeah, to yeah. keep on wearing them or over a period of time. So now if I go to the airports, there have been number of times and देखा है ladies आराम से they're wearing sarees, Yeah, yeah, and yeah. they're going around. Hmm. घूमने गए तब भी हमने देखा people are wearing sarees. Hmm. So escort event था लंदन में कुछ साल पहले. So group of ladies, they all wore Indian sarees, and they all accumulated there. Yeah. So this is the kind of acceptance that sari has got over a period of time. So we should be thankful to a lot of brands, a lot of influencers जिन्होंने साड़ी को इस प्लेटफॉर्म तक पहुंचाया है कि जैसे केन्स फिल्म फेस्टिवल होता है. So आपका है ऐसे that ambition to be there in that festival or at ऐसा कुछ, what's your next goal? Yeah, obviously I want that people should wear more sarees, wear more art. So this has been the objective, but ऐसा कुछ मैंने end objective नहीं रखा है कि हाँ. my dream is definitely that someday, like I told you, some like Priyanka Chopra or Rekha ji wearing our sari. This definitely has been our ambition. And another ambition that I definitely have is that brands give chance to Indian fabrics, right? जैसे कि for example Gucci giving Indian art inspired handbags, Indian handloom products से बना हुआ हो. So those are the dream kind of collaborations that I very want nice. कि यार ठीक है जिसमें हमारा
फैब्रिक यूज हुआ हो, मतलब हैंड पेंटेड, कोई पिछवाई थीम बैग्स निकले कभी, तो हम उसका मतलब दीज आर द, उसमें जो है काउज वगैरह या लोटस है, वो हमारे इट शुड कम फ्रॉम आर आर्टिस्ट. Yeah. So those are the kind of collaborations that I look for. Hmm. So yeah, this is what I Wow, feel that's about wonderful, it. and I think that will happen sooner or later. Yeah, Yeah, we man, are मतलब hopeful. नहीं, this is some wonderful work you are doing. But Yeah. यार मेरे को ये जानना है, आपको जब आर्टिस्ट के साथ आप काम करते हैं, how easy difficult it is, because that must be like really artist, even जो जैसे आप अजरक की बात कर रहे हो या Correct, ब्लॉक correct. प्रिंटिंग की हाँ. बात कर रहे हो, तो उसमें आपको बहुत लोअर लेवल पे भी, जैसे आप बोल रहे हो कि जैसे बिहार में आप लेडीज के Correct, साथ करते हो, correct, तो correct. how do you handle everyone? So everywhere, all the places, we have a cluster manager who हाँ. takes care of. So the design has been gets we send them the design, and it is his duty to get it done from But the is it group easy of and ladies. difficult with It how is it was difficult at a point of time, but eventually we worked on it, and अब उनको हमारा स्टाइल ऑफ वर्किंग पता है कि यार हम they are acceptable, yes, they accept it, मतलब resistance came in the beginning कि ये तो इसी तरीके से होना चाहिए, and that's what we wanted to work on also, क्यों इस तरीके से होना चाहिए, why can't there be a change, right? So we have worked with them, and now they understand that यार कि हमें इस तरीके से काम चाहिए, कवाई को इस तरह के ऑडियंस को केटर करना है, मतलब तो आपका हमारा आइडिएशन एक विजन क्या है, they have करेक्ट, understood. हमारा राइट एग्जैक्टली, हमारा विजन है कि हम प्रोडक्ट्स मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी चला सके, वैसे प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं और भी बनाना चाहते हैं, तो वो सब चीज़ें आप ध्यान में रखते हुए हमारे प्रोडक्ट्स बनाओ. थोड़ा सा ट्रेनिंग लगा है, बट येस, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, so over the period of 4 years they have been working with me on continuous basis. They speak to me, so they now understand कि मैडम को ये काम नहीं चलेगा, मैडम को ये काम अच्छा लगेगा. तो शुरू में काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स बने जो रिजेक्ट भी हुए, बट देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उनको समझ आ गया कि इस तरह से हम काम करेंगे तो वो सही रहेगा, एंड so that's And how they are we have been always moving. open and willing, Correct, as if correct. comparatively. Correct, Wow, right. wow. One thing अगर मैं आपसे पूछूं last One more thing आपकी क्वेश्चन में थी जो I would like to discuss. So we work with lot of artists, right? So artists are the kind of people who are actually they're not driven by money, okay, right? They're not driven by money. For them, money is not the motivating factor. really? Yes. So up to a certain extent, but not really. So what I feel is that they have worked so many years. उनका experience है उस काम को करने में. So they are like little moody. So तो उसको ध्यान कोई में रखते हैं. एक्सपीरियंस आप अगर शेयर करो तो. No, you cannot work with them on deadlines or timelines कि आपको इतने दिन में करके देना ही है. No, it doesn't work like that. So that is one thing that we have to make sure कि वो दोनों चीजें hand in hand हो. बट उसमें मतलब जैसे आप अप्रोच कर रहे हो, ऐसे देयर मस्ट बी अ लॉट ऑफ अदर पीपल ऑल्सो ना, तो हाउ डू यू एज इन की यू शुड डू आवर वर्क एंड एवरीथिंग, हाउ डू यू मैनेज दैट पार्ट? हमारा ही काम उनको इतना मिल रहा है कि आई थिंक अच्छा ऐसा जनरल, बट आई एम श्योर कोचिंग और मोर पीपल आर कमिंग, ये सब होता ही होगा. there will be lot of people who will come, but I think over the period of time आपके साथ अभी we एक्सपीरियंस, have given them ease and comfort to work with them. They got used to working with them. अब हर तरीके से आपका पेट भरा रहेगा तो आप, मुझे नहीं लगता आपको बाहर की और चीजों की इच्छा होगी. अच्छा मतलब आपके साथ अभी एज सच right, so we try to keep them satisfied in all the ways, monetary ways से या फिर, so that is like one thing. और भी in terms of ease of working है कि आपको 9 से 6 काम करना ही हमारे लिए ऐसा नहीं है. like I told you, बिहार में लेडीज है, काम करके आती हैं घर का, उसके बाद they do it. So the ease of working is there. So so we have been we ensure कि हम सब उन तरह के लोगों के साथ में जुड़े. तो अब सिंपल ऐसे हो गया कि आप डिजाइन भेज देते हो, दे डू इट एंड देन दे सेंड यू बैक. करेक्ट, सिंपल अब उतना एक टाइम के बाद ऐसा हो जाता है. जी जी. एंड देन दे, बट यू हैव टू बी लाइक एट इट कंसिस्टेंसी के साथ में ये आया है. ऑफ कोर्स यू कैन नॉट बी आज आया है कल, देन दे विल आल्सो फील लाइक इस महीने कुछ नहीं है काम एंड ऑल ऑफ एवरीथिंग टेक्स अ हैंड. आपकी कोई ऐसे एक फेवरेट अपने, अगर मैं उसका पूछूं, वन hero product, yeah, as in the hero sari that's like that gets a repeated order or anything, what would you say? Like I told you, the black and white Sanvi Ajrak sari. अच्छा, Sanvi Ajrak sari जो आपने बोला, that was
one hero product. हाँ. Another one I'm wearing right now. That has Hmm. been a very, You have worked with a lot of celebrities also, no? yeah, we are still working, Yeah. and we are trying to, हाँ. work with, but we are very selective on the kind of people that we work with. If I ask you, ऐसे जो आपने kind of people बोला, अगर एक कवाई women को अगर आपसे बोलूं कि आप explain करोगे, who would that be? Some, people who resonate with, my ideology, my thinking, कि आर्ट सिर्फ वॉल पे ही क्यों, आर्ट आप पहन क्यों नहीं सकते हैं. सो दैट इज़ वन. सेकेंड, पीपल who want to look exceptionally different, because people want to look different every time. आप मतलब market is filled with variety of products, but I think my products make you look different. So we've got uh, comments from customers like I've been waiting for my retirement, so that I've been waiting to buy this sari so that I can wear it for my retirement. So now I'm buying it, and I'll share with you the picture of my retirement day. Wow. So that gives you a lot of happiness. So nice. आप ऐसे एक महीने में कितने डिजाइन्स बना लेते हो ऐसे? यार हम कलेक्शन वाइज चलते हैं, सो इट डजंट हैपन कि हम हर दिन नई नई साड़ी बना रहे हैं, ऐसा नहीं हाँ, होता. सो हाँ. अगर एक कलेक्शन चल रहा है तो उस समय उसी का वही साड़ी रिपीटेडली अलग अलग बनती हाँ, got रहेगी. it, got करेक्ट, it. राइट. But और ऐसे नए डिजाइन्स कैसे सोचते हो? You keep, how do you plan that? कि what's there in the market, which art We form do see you that want to what see? colors we have not done, what kind of motifs we have not worked on, and based on that we come up with the designs. मतलब वो एक, जैसे मेरा होता है ना कि यार नया कंटेंट क्या करना है, क्या चीज Correct, ऐसी, तो वो एक कांस्टेंट मैं हर चीज में फिर वो देखती हूँ. मतलब दैट्स Correct. समथिंग दैट हैज बिकम कि, Yes. तो आई एम श्योर दैट हैपेंस विद यू Yes, आल्सो. right. पूरे टाइम ही वही चलता है दिमाग में Yeah. कि वो अच्छा उसमें हमने ये वाला फ्लावर तो लिया ही नहीं, अरे वो वाले हाँ. ऑर्डर में आई एम नॉट श्योर कि वो रेडी हुआ है कि नहीं हुआ है. हाँ, हाँ. सो इट हैपेंस Yeah, एवरी डे, अगर एवरी टाइम. मैं से एक डार्क साइड पूछूं इस बिजनेस की, क्या बोलोगे आप? लाइक डार्क साइड इन टर्म्स ऑफ दैट्स लाइक सब इजी दिखता है, सब फ्लारी दिखता है, बट इट्स डिफिकल्ट आल्सो. व्हाट वुड यू से ऑन दैट? When I talk about the dark side of online marketing, what I feel is that customer acquisition is the biggest cost. तो हम आपको कोई बैड क्वालिटी प्रोडक्ट दे ही नहीं सकते हैं, बिकॉज हम चाहते हैं कि आप हमसे बार बार आके खरीदें, और वो तभी होगा जब आप आपको पहली बार सेटिस्फाइड करेंगे. सो इफ़ यू वांटिंग टू ट्राई आवर प्रोडक्ट्स, जस्ट डू गिव इट अ थॉट एंड यू कैन बाय फ्रॉम अस बिना कुछ सोचे समझे. दैट्स वंडरफुल Yes. एंड लवली कॉन्वर्जेशन. आई मीन मेरे लिए भी बहुत इन्फॉर्मेटिव था, क्योंकि Okay. जनरली मैं रिसर्च करती हूँ तो मुझे ऑलरेडी काफी चीजें पता होती है, करेक्ट, करेक्ट. बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड. मतलब बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ आर्ट फॉर्म्स, Correct. हाउ इट वर्क्स, बट आपने Correct. बहुत सिंप्लिसिटी से एक्चुअली एटलीस्ट समझाया है कि कैसे एक साड़ी का जो जर्नी होता है, हाउ डज इट ट्रैवल, एंड this is Correct. very beautiful what you're doing. Trust me, I'm like very much appreciative about Thank it. you कि आप so much. आर्ट फॉर्म को बाहर लेके जा रहे हो और इतने पैशन के साथ लेके जा रहे हो, एंड पीपल आर गेटिंग टू नो मोर अबाउट इट. Yes. एंड थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे. हैड अ वंडरफुल कॉन्वर्सेशन. Thank you so much, Anuna, for inviting me. And so this gave me a platform so that I can interact with my client base, and people know more about what I think about my products and what I feel about art. So thank you so much Yeah, for lovely. giving me this chance to speak my heart out, and thank you. Yeah, wonderful. Thank you.